لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى ملته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، نور پر محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم. میرا پرانا مجمع ہے، بے شک سالہ میں ایک دفعہ یہاں آتی ہوں، لیکن آپ سب واقف ہیں اس بات سے کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں. کیوں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے؟ فقط اس لیے کہ کربلا مثال ہے ہمارے لیے. کربلا میں کیونکہ اپنے وقت کے امام کو پہچانتے نہیں، کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا جنت کے راستے کو چھوڑ کر دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح آسانی سے جہنم کی طرف چلیں گے. اور آج بھی یہی ہوگا کہ اگر ہم فرش عزا پر آ کر اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہم سچے منتظر نہیں بن سکتے. اور سچا منتظر بھی سچا عزادار بنا کرتا ہے. اسی فرش عزا سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے فرش عزا پر آتے ہیں؟ نہیں، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم فرش عزا پر قدم کر سکیں. صرف وہی آتے ہیں جنہیں وقت کا امام بلاتا ہے، جنہیں وقت کا امام اجازت دیتا ہے وہ فرش عزا تک پہنچتے ہیں. اور اسی لیے بہت تاکید کرتی ہوں کہ ایام عزا میں فرش عزا پر آ کر وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ اسی فرش عزا سے حرمت کرتے ہوئے اٹھتے ہیں اور سلمان فارسی کرتے ہوئے اٹھتے ہیں. مگر یہ وضاحت کرو کہ حر اور سلمان فارسی ایک طرح سے نہیں بنا کرتے ہیں. جو ایک رات میں بدل جائے اسے حر کہا کرتے ہیں، اور جو پوری زندگی میرے رسول پر جستجو میں گزارے اسے سلمان فارسی کہتے ہیں. محمد وعجل فرجهم. حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، ہمیں حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اور تباہ کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. اور کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. کرم حسین کا لایا ہے، حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہو. اللهم
वाकई इमाम की मार्फत को हासिल करना हम पर फर्ज है ताकि हम जन्नत और जहन्नम के रास्तों को पहचान सकेंगे, हक और बातिल में फर्क कर सकेंगे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अहले मिंबरान मिंबर से मार्फत को हासिल करने की तो बहुत तारीफ करते हैं, इस पर बहुत इसरार करते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं समझाता कि मार्फत को हासिल कैसे करें। कोई ये नहीं बताता कि आसान से आसान तरीका क्या है कि हम एहतियात नहीं करते हैं तो हमें कोई समझाए कि आसान तरीका क्या है कि हम अपने इमाम की मार्फत को हासिल कर सके और हमें ये पता हो कि हमारी मार्फत किस मकाम पर है, कितनी बुलंदी पर है या कितनी पस्ती में है। तो जब मुझसे भी किसी मोमिना ने ये सवाल किया, कोई 6-7 साल पहले मैं इसी मौजू पर एक अशरा पढ़ रही थी, उसके दौरान क्योंकि कुछ मोमिना की तवज्जुहात इतनी होती है कि उनके ज़हन में सवाल उठते हैं, और जब वो सवाल करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी मेहनत वसूल होगी। उन्होंने ये सवाल किया तो फिर मैंने अपने मुताले को बढ़ाया, अपनी तहकीक को बढ़ाया, और फिर उलमा की तहकीक के नतीजे में जो एक आसान सी बात जो मुझे समझ में आई, जो मैंने उन तक भी पहुँचाई और आज आपकी नज़र को बात करती हूँ कि एक जुमले में अगर मार्फत को समझना हो तो बहुत आसान जुमला है कि इमाम की मार्फत क्या है, इमाम की पसंद और नापसंद को पहचान लें, बस ये इमाम की मार्फत है। ये हम क्या समझते हैं कि इमाम की कुनियत को जानना, इमाम के शजरे नसब को जानना, इमाम का जाए मकाम क्या है, जाए पैदाइश क्या है, हम समझते हैं इसकी तफसीलात जो है हमें पता है, तो हमें अपने वक्त के इमाम की मारिफत है। जबकि निचोड़ क्या है अपनी तहकीक का कि अपने वक्त के इमाम की पसंद और नापसंद को पहचाना है। अब इसको और आसान कर दूं कि हम ये जानते हैं कि हमारी पसंद और नापसंद इमाम की पसंद और नापसंद से कितना नज़दीक है। जितनी हमारी पसंद और नापसंद इमाम की पसंद और नापसंद से नज़दीक है, उतनी हमारी मार्फत ज़्यादा है, और जितनी हमारी पसंद और नापसंद इमाम की पसंद और नापसंद से ज़िंद है, उतनी हमारी मार्फत में कमी है, उतना हमें अपनी मार्फत को बुलंद करने की ज़रूरत है। अब अगर हमें ये देखना है, खुद अपने आप का एहसास करना ना, हर एक अपने लिए जिम्मेदार होगा कि हमारी मार्फत को हम अपनी पसंद और नापसंद को कैसे चेक करें कि कितनी इमाम की पसंद और नापसंद से संबंध है। तो हर एक के पास दिन के 24 घंटे, अल्लाह ने सबको यकसा नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो जाहिल हो, वो आलिम हो, वो बीमार हो, वो सेहतमंद हो, अल्लाह ने वक्त की तकसीम सबके लिए आदिलाना की है। सबके पास 24 घंटे दिन के होते हैं। अब वो चाहे तो उन्हीं 24 घंटों को एक जाहिल अच्छा इस्तेमाल करके आलिम बन सकता है, एक गरीब अच्छा इस्तेमाल करके अमीर बन सकता है, और उसी का गलत इस्तेमाल करके बिल्कुल औकात काम कर सकते हैं। तो सबके पास 24 घंटे हैं। हमें ये चेक करना है कि हम 24 घंटों में से कितने घंटे अपने इमाम की पसंद के मुताबिक गुजार रहे हैं। ये हर एक चेक कर सकता है। कितनी दफा ऐसा होता है कि हम हराम काम नहीं कर रहे होते, जो जायज़ है वही कर रहे होते हैं, लेकिन जो इमाम की पसंद के नज़दीक नहीं हुआ करता। मिसाल बच्चियाँ भी मेरे सामने बैठी हैं, दो ख़वातीन भी बैठी हैं, और ये सिर्फ बच्चियाँ, उनको मैं मुखातब करके नहीं कह रही हूँ कि बुजुर्ग ख़वातीन माज़रत के साथ वो भी मेरे मुखातब हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं। उसमें से सबसे आसान मिसाल आजकल क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल यूज़ होता है ना, मोबाइल पर गेम खेल रहे होते हैं, कितना वक्त ज़ाया करके वक्त का ज़िया है, एक अलग बात है, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे इमाम को, जो वक्त के इमाम हैं, उन्हें पसंद है या नापसंद है। मैं ये काम करके अपने वक्त के इमाम को राज़ी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। एक आम सी मिसाल है ना, और आजकल तो मैं देखती हूँ कि बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग भी बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं इस तरह के कामों में। तो ये मोबाइल ये बहुत सोशल मीडिया एक टूल है, बहुत बेहतरीन टूल है इस वक्त हमारे हाथों में। हम चाहें कि इसको बहुत अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
के लिए हासिल कर सकते हैं, इसी को हम तकलीफ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ही चाहें तो हम इसको वक्त के ज़िया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कामों के लिए कि जिसका कोई मसला नहीं है। जब रोज़ महशर हमारे सामने नामाए अमाल हमारे हाथों में दिया जाएगा, बहुत से सफ़ा खाली होंगे, ब्लैंक होंगे, उस पर ना गुनाहों का ना सवाब होगा। उस वक्त इंसान पछताएगा कि काश मैंने इस वक्त को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर लिया होता। तो ये हमारे हाथ में है कि हम उस वक्त को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो वह जितना हम अपने वक्त को इमाम वक्त की पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी हमारी मानवत बुलंद है, और जितना हम उसके अपोजिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही हम पस्ती में जा रहे हैं। यूँ पढ़िए मोहम्मद और इमाम की इताअत जब मार्फत होगी तो हम इताअत की मंजिल पर आएंगे। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें गदीर में नजर आती है कि जब पैगंबर खुदा मौला अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। विलायत क्या है? आज हम सब विलायत के नाम पर झगड़ रहे हैं, तो दुश्मन एक बहुत बड़ी चाल चल रहा है मोमिनों को तोड़ने के लिए, उनके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए। विलायत पर भी एक दूसरे से दुश्मन बन गए जो कि हमारी ताकत है। और विलायत क्या है? जो मौला के लिए जो गदीर में ऐलान हो रहा है, विलायत के माना को हम नहीं समझते हैं, उस पर झगड़ा करते हैं कि यहाँ करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए। विलायत है क्या, इसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता। विलायत असल में क्या है? हम पर हमारी जान माल पर इमाम का हक़ तसर्रुफ़ रखना, यानी हमें अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में नहीं गुजारनी है, इमाम की इताअत करते हुए गुजारनी है। तो अज़लाना इमाम की मोहब्बत जब हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हमारी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं और इमाम की मोहब्बत गालिब आ जाती है, तो हम इमाम की इताअत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको आसान सी मैं मिसालें दिया करती हूँ कि बच्चियाँ फर्श अज़ा पर होती हैं, और मेरी कोशिश होती है कि इस फर्श अज़ा से अगर कोई बुजुर्ग कुछ लेकर बैठे तो बच्चे भी कोई रूहानी तबर्रुक लेकर बैठे। आसान मिसालें आजकल अय्याम अज़ा हैं। अय्याम अज़ा में आप सब रह रहे रोज़े से निकलती हैं, सुबह से घर के काम भी हैं, शौहर की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, घर के दीगर काम हैं, और फर्श अज़ा पर आकर कुर्सा भी देना है। अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि एक अज़ादार माँ कितना थक जाती है जब वो रात को बिस्तर पर लेटी है। अब जब पूरे दिन आप कामों को अंजाम देकर फर्श अज़ा पर आकर जब बिस्तर पर लेट गई हैं, उस वक्त रात में बच्चा भूख से रो रहा है, एक छोटा बच्चा है और वो भूख से रो रहा है। अब माँ पर नींद भी गालिब है, थकन भी गालिब है, लेकिन बच्चे की मोहब्बत उसे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देती है कि वो जाकर दूध लेकर आए और बच्चे को दूध पिलाए। तो क्या है? मोहब्बत गालिब आ जाती है हमारी ख्वाहिशात, हमारी थकन पर। अगर हम बीमार हैं तो हमारी बीमारी पर माँ कभी अपनी बीमारी नहीं सोचती, बच्चे को दे देती है। तो बच्चे की मोहब्बत गालिब होती है जो होती है ना, तो इसी तरह जब पूरे दिन ही थके हुए हों, जब घर के काम फर्श अज़ा पर आना, ये सारी जिम्मेदारियाँ अंजाम देकर जब थक कर बिस्तर पर जाएं, और उस वक्त जब फजर की अज़ान हो, तो उस वक्त अगर इताअत इमाम और वक्त इमाम की मोहब्बत हमारी थकन पर, हमारी नींद पर गालिब हो और हम बिस्तर छोड़कर उठ जाएं, तो ये है इताअत इमाम, ये है असल मार्फत इमाम। जब हम
किसी गुनाह की, किसी दुनिया की आलूदगियों की तरह बढ़ने लगे, और जब हमारा ज़मीर टोकता है ना, तो वो दर हकीकत वो इम्तिहान होता है। इर्तिकाबे जुर्म पर जब टोक देता है ज़मीर, दर हकीकत ये इमाम असर की आवाज़ है। ये जो हमारे ज़मीर की आवाज़ होती है ना, ये असल में इमाम ज़माना की आवाज़ होती है। इमाम असर हमें रोक रहे होते हैं, तो उस वक्त जो रुक जाए, उस वक्त जब मेरा दिल चाहता है मैं हिजाब करूँ, लेकिन शौहर को पसंद नहीं है, मेरे बहन भाइयों को नहीं पसंद, मेरे बच्चों को नहीं पसंद, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे वक्त की माँ को पसंद है, तो अगर मैं हिजाब कर रही हूँ तो मैं अपने वक्त के इमाम की पैरवी कर रही हूँ। तो असल मार्फत ये है कि जब हम फैसला करने लगे, जिंदगी में कोई भी फैसला करने लगे, तो उस वक्त हमें ये समझ में आ जाए कि मेरी कोशिश किसमें है और मेरे वक्त के इमाम की कोशिश किसमें है, दुनिया की रजा किसमें है और वक्त के इमाम की रजा किसमें है। अगर मुझे ये समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए कि मैं मार्फत की बुलंदियों पर दूर पर लिखा हूँ। तो अगर हमें मार्फत समझ में आ जाती है और हमें मार्फत हासिल हो जाती है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मंजिल आती है इमाम की ज़ियारत। फिर ज़्यादा पैदा होती है ना, जब इमाम को पहचानते हैं, जब ये यकीन होता है कि हम हर लम्हा अपने वक्त के इमाम के महज़र में हैं, हमारे वक्त का इमाम हर लम्हा हमें देख रहा है, उस वक्त फिर इमाम की ज़ियारत की तरफ होती है, फिर इमाम की मुलाकात की तरफ होती है। वज़ान इमाम बहुत सारे वाक़यात हैं, इमाम से मुलाकात के लिए बहुत सारे वज़ाइल हैं, किस किस तरह लोगों ने इमाम से मुलाकात की है, कैसे उसकी ज़ियारत की है। सूरह मोमिनून बहुत कसरत से पढ़ना, इमाम की ज़ियारत के लिए उसकी शादी की गई है, ज़ियारत जामिया कबीरा है, ज़ियारत आशूरा है, बहुत सारे वज़ाइल हैं जो 40 जुम्मों तक अगर ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाए, ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ी जाए तो इमाम की ज़ियारत नसीब होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें रिवायात में मिलती हैं। छोटा सा वाक़या आपकी नज़र कर दो और उसके बाद मैं मौजूद से मुतसिल हो जाऊँ। वज़ान इमाम आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के जो वालिद बुजुर्गवार हैं, आयतुल्लाह बाकर सिस्तानी, वो मशरक़ के बहुत बड़े उलमा में उनका शुमार हुआ करता था। उन्होंने एक मरतबा इमाम असर की ज़ियारत के लिए 40 जुम्मों तक उन्होंने ये शुरू किया कि वो इमाम की ज़ियारत करेंगे, तो ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत जामिया कबीरा तो जाके मसाजिद में पढ़ा करते थे हर जुमे के रोज़। और उसके बाद जब 48वां जुमा था और वो जब अपनी इबादत कर रहे थे, उसके दौरान ही उन्होंने देखा कि खिड़की से जिस जगह वो मस्जिद में इबादत कर रहे थे कि एक नूर सौते हो रहा है। अब जब उन्होंने उस नूर को देखा तो उन्होंने चाहा कि मैं अब बाहर जाकर इस नूर के मस्दर को तलाश करूं कि नूर कहाँ से साते हो रहा है। जब बाहर तशरीफ ले गए तो देखा कि एक जनाजा रखा है, नमाज़ जनाजा हो रही है और इमाम ज़माना इमाम असर अलैहिस्सलाम जनाजा देके तशरीफ लाए। कहते हैं कि जैसे ही मैं उनके करीब गया, उन्होंने कहा, आयतुल्लाह बाकर सिस्तानी को मुखातब करके कहा कि मैं साहिबुल ज़मान हूँ और मैं यहाँ जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मुझसे मुलाकात के मुश्ताक हो तो तुम्हें इतने लंबे लंबे वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं है, इतने लंबे लंबे चिट्ठे काटने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आमाल को इस साहिबे जनाजा जैसे आमाल की तरह कर लो। मैं तुम्हारी ज़ियारत के लिए आऊँगा, तुम्हें मेरी ज़ियारत के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारी ज़ियारत के लिए, तुमसे मुलाकात के लिए तुम्हारे घर आ जाऊँगा। तो आयतुल्लाह बाकर सिस्तानी हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर इस साहिबे जनाजा का क्या अमल था जो इतना बुलंद मर्तबा कि आप उसकी ज़ियारत के लिए नमाज़ जनाजा पढ़ाने आते। तो फरमाते हैं कि रज़ा खान जो
جو شاہجہاں کا باغ تھا اس میں ایک مرتبہ پابندی لگا دی تھی عورتوں کے حجاب پر کہ کوئی عورت گھر سے باہر حجاب کر کے نہیں نکلے گی بلکہ بے پردہ نکلے گی. تو امام زمانہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اطاعت امام میں 7 سال گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، حتیٰ کہ ضروری کام کے لیے بھی باہر نہیں نکلی. اس طرح ہمیں پردے کی حفاظت کی. تو اس پورے واقعے میں جہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ایسا بنا لیں کہ امام ہماری زیارت کو مشتاق ہو جائیں، وہاں مومنات کے لیے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک باپردہ باحجاب عورت کا امام زمانہ علیہ السلام کی نظر میں کیا مقام ہوا کرتا ہے. ضرور پڑھیے محمد اگر اپنے وقت کے ظالم سے ہو نہیں بیزار تو ظلم حسین ہے تو بھی ہو گئے تیار. اگر ذرا سے بھی رکھتے ہو معرفت میری ہونا چاہیے کہ بات کس طرح پوری. یزیدیت کو مٹا دو، اسے بلا کر دو، حسین واسطے مقبول کر بلا دو. نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات. ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. ایسے گریا کرنا نہیں سکھاتا، صرف نعرے لگانا نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں آرگنائز ہونا بھی اسی فرش اعلیٰ سے ہم سیکھتے ہیں. فرش اعلیٰ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، سیم پیچھے آنے والوں کو زحمت نہیں ہوگی. میں نے سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی 32ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. میں موضوع سے متصل ہو گئی ہوں. ابتدائی حصہ آپ جانتے ہیں محسوس کرتی ہوں، اس کے بعد موضوع سے متصل ہو جاتی ہوں. آج موضوع مجلس ہے جنگ احد کے حوالے سے، اور میں نے ابتدا میں سورہ آل عمران کی 32ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَإِن تَوَلَّوْا، اور جس نے بھی رسول کو پشت دکھائی یا رسول کی طرف سے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں کو دوست نہیں کرتا. اب یہاں پر پہلے تو کافر کا مطلب سمجھ لینا چاہیے. ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ کافر ہمیں صرف ان لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو اس وقت مکے کے کفار تھے. قرآن کی آیات ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں، ہر زمانے سے ریلیٹ کرتی ہیں اور قیامت تک ریلیٹ کرتی رہی ہیں. دیکھیے قرآن کی آیات کبھی فرسودہ نہیں ہوتی. آپ جتنی مرتبہ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کو ہر دفعہ کچھ نیا لگتا ہے. جو لوگ مسلسل قرآن کا تفہیم کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. تو کافر پروردگار عالم سے کہہ رہا ہے، پہلے کافر کی صفات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کافر ہے کون، کافر کی صفات کیا ہے، کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک تو آسان سی ڈیفینیشن ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کا منکر ہے، جو اللہ کو سجدہ نہ کرتا ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اسے کافر کہا جاتا ہے. مگر پھر قرآن کریم میں بھی پروردگار عالم پکار کر کے کہا ہے وَإِذَا سَمِعْتُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اسے سنبھالا، اس وقت کہہ رہے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا ہے کہ جب میں اسے سنبھال لوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اے ملائکہ تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. سب جانتے ہیں کہ آیت مشہور و معروف والا ہے. تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابا واستکبر
वकाना मिनल काफिरीन, सिवाय इब्लीस के कि जिसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। अब यहाँ गौरतलब बात है ना कि हमें तो काफिर की ये डेफिनेशन पता है कि जो अल्लाह के सजदे का इनकार करने वाला, लेकिन यहाँ किसका इनकार हो रहा है? अल्लाह के सजदे का तो इब्लीस ने इनकार नहीं किया, अल्लाह को तो उसने 70,000 साल सजदा किया है। सबसे ज्यादा इबादत इब्लीस ने की, हम सब जानते हैं। किसके सजदे का इनकार कर रहा है? आदम के सजदे का। तो अल्लाह काफिर क्यों करार दे रहा है? इसलिए कि अल्लाह को सिर्फ सजदे का, अल्लाह के सजदे का इनकार करने वाला काफिर नहीं है, अल्लाह की इताअत ना करने वाला भी काफिर है। उसने अल्लाह के सजदे का इनकार नहीं किया, अल्लाह की इताअत से इनकार किया, क्योंकि हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह हुक्म दे रहा है और इब्लीस इनकार कर रहा है। तो क्या समझ में आया कि अल्लाह की इताअत से इनकार करने वाला भी काफिर है। तो हमें एहतसाब करना चाहिए ना अपना कि हम अल्लाह की इताअत करने वाले हैं कि नहीं हैं। सिर्फ अल्लाह का इनकार करने वाला नहीं, अल्लाह की इताअत से इनकार करने वाला भी कुरान से काफिर करार दे रहा है। फिर और आगे बढ़ें तो ये आयत सूरह आले इमरान की कि जिसमें परवरदिगार आलम किसे काफिर करार दे रहा है? अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत भी और रसूल की इताअत भी इसी तरह करनी है। जैसे अल्लाह की इताअत करनी है, वैसे ही अल्लाह के रसूल की इताअत भी करनी है। और फिर जिसने रसूल को पुष्ट दिखाई, रसूल से मुंह मोड़ा या रसूल को तन्हा छोड़ दिया, सारे एक ही मफहूम है। तो जिसने ऐसा किया अल्लाह उसे भी काफिर करार दे रहा है। तो कुरान की आयत कह रही है कि फिर अल्लाह ऐसे काफिरों को दोस्त नहीं रखता। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि काफिर की सिफात हमें समझ में आ गई, काफिर की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ें, आयत क्या कह रही है? फ़इन तवल्लौ, आयत कह रही है जिसने भी रसूल को पुष्ट दिखाया, रसूल से मुंह मोड़ा। अब आयत ये नहीं कह रही कि कितनी देर के लिए, आयत के अल्फाज क्या है? फ़इन तवल्लौ। अब रसूल से मुंह मोड़ना एक लम्हे के लिए हो, एक लहजे के लिए हो, पलक झपकने के लिए हो, कुरान की आयत के लिए जिसने भी ए रसूल आपको पुष्ट दिखाया, आपसे मुंह मोड़ लिया, अल्लाह ऐसे काफिरों को दोस्त नहीं रखा करता। तो अब ये तो कुरान की आयत हो गई। अब कुरान की आयत को जब हम खोलते हैं ना, जब उसकी तफसीर करते हैं तो हमें अहादीस का सहारा भी लेना होता है, रिवायात का सहारा भी लेना होता है, तारीख का मुताला भी करना होता है और सीरत को भी पढ़ना होता है रसूल की। जो मुझे मुसलसल सुनते हैं वो जानते हैं, मैं कभी मिंबर से कॉन्ट्रोवर्शियल अहादीस नहीं कोट करती। हमेशा वो हदीस, वो तारीख, वो रिवायत कि जो मुत्तफ़िक़ अलैह हो, जो हमारी किताबों में भी हो और जो अहले सुन्नत की किताबों में भी हो। अबुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़ा नाम है मुसलमानों में, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सबका इत्तेफाक है उन पर। वो अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं कि जंगे उहद में जब मुसलमान हारी हुई जंग अली की जुल्फ़कार के सदक़े में जीत गए, तो जो लोग चले गए थे, जब वो वापस आ गए। अब यहाँ थोड़ा सा रुकूं और रुक कर अपनी बच्चियों को ये समझाऊं कि जिन्हें समझ में नहीं आया होगा कि कौन चले गए थे। यकीनन बड़े जानते हैं, लेकिन मैं तो पढ़ती ही बच्चियों के लिए हूँ हमेशा कि ये हमारा मुस्तक़बिल है, कल इन्हें ही मिंबर आकर संभालना है, तो उन तक वो पहुँचना चाहिए जो आखिर मिंबर तक उन्हें पहुँचाना। तो जो चले गए थे वो वापस आ गए। वो कौन थे? जो हज उम्रे के लिए गए हैं, जिन्होंने हज़रत हम्ज़ा अलैहिस्सलाम की उस ज़री की ज़ियारत की है, वो जानते हैं कि उसके पीछे एक दर्रा है जहाँ जंगे उहद हुई। उस दर्रे पर जंग के दौरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को वहाँ खड़ा किया था। जो तीरंदाज थे रसूल की फ़ौज में, उन तीरंदाजों को रसूल वहाँ खड़ा करके गए थे और कहा था कि चाहे पहाड़ अपनी जगह से हट जाए मगर तुमने यहाँ से नहीं हटना है। कौन हुक्म दे रहा है? रसूल। वो रसूल के जो बगैर वही इलाही के कलाम नहीं है, वो रसूल हुक्म देकर जा रहे हैं कि इस जगह को छोड़ना नहीं है। मुसलमान उस वक्त तक जंग जीत रहे थे,
रसूल ने हुक्म दिया, रसूल वहाँ से हटे। अब वो दर्रा पहाड़ी जो है वहाँ से देख रहे हैं कि मुसलमान जंग जीत रहे हैं और जो कुफार हैं, जो मुशरिक हैं, वो भाग रहे हैं। तो जब देखा कि कुफार भाग रहे हैं, मुशरिक भाग रहे हैं, तो मुसलमानों ने सोचा कि तो माले गनीमत लूटने का वक्त है, लोग माले गनीमत उठा रहे हैं, कहीं हम रह ना जाएं। अब कितने लोग थे? 50 लोग। 50 में से कितने वहाँ से छोड़कर चले गए? 48। सिर्फ 2 लोग बचे। अब आप सोचिए कि 98% लोग उस दर्रे को छोड़कर चले गए, सिर्फ 2 लोग बचे जो कहते रहे कि रसूल मना करके गए, लेकिन उन्होंने वो छोड़ दी वो जगह। और जब छोड़ दी तो उसके बाद जो कुफार थे, जो मुशरिक थे, वो वापस पलट कर आए और उन्होंने वापस आकर हमला किया और इस तरह हमला किया कि रसूल तक पहुंच गए। ये वही जगह हुआ था ना कि जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं। तो वो रसूल तक पहुंच गए हमला करते हुए और उस वक्त बस एक ही था, बस एक ही था जो रसूल के नाके के गिर्द तवाफ कर रहा था और जो रसूल की हिफाजत कर रहा था वो बस एक ही था। और लड़ते लड़ते जब अली की जंग उहद में तलवार टूट गई, तब रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। रसूल के पास अपनी तलवार थी, रसूल ने तलवार नहीं दी, खजूर की टहनी तोड़कर दे दी। अली का अदब रिसालत देखिए, अली ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह उनके पास तो लोहे की तलवारें हैं, आप मुझे खजूर की टहनी दे रहे हैं। अली ने उसी खजूर की टहनी से लड़ना शुरू किया, फिर टहनी टूट गई, फिर रसूल की तरफ देखा, फिर रसूल ने दूसरी टहनी तोड़ कर दी। रसूल के पास तलवार है, तलवार नहीं दे रहे क्योंकि इंतजार कर रहे हैं, रसूल इंतजार करते रहे। जिब्राइल जुल्फ़कार लेकर आ गए, जुल्फ़कार अली के हाथों में लाकर गए। और हज़रत इमाम हम सब जानते हैं कि जब वो लोग वापस आ गए थे ना, जब उन्होंने रसूल के गिर्द, जो अब सारे मामला ठीक हो गए और रसूल के गिर्द जब जमा हो गए, अब रसूल ने मुस्कुराकर उन मर्दों की तरफ देखा, उन बहादुरों की तरफ देखा जिनके जिसम पर कोई खराश भी नहीं आई थी। अब जब रसूल ने उनकी तरफ देखा तो रसूल ने उनसे पूछा कुछ नहीं, अली की तरफ मुस्कुरा कर देखा कि जिसकी जुल्फ़कार से अभी तक मुशरिकों का लहू टपक रहा था। अली की तरफ देखकर कहा कि या अली, जब सब चले गए थे छोड़कर तो आप क्यों नहीं गए? हाथों को जोड़ कर कुछ भी, या रसूल अल्लाह जो चले गए थे उनसे तो आप सवाल नहीं कर रहे, अली जो रुके रहे उनसे आप पूछ रहे हैं कि या अली आप क्यों नहीं गए? तो जब रसूल ने अली से पूछा तो अली ने क्या जवाब दिया? हज़रत ने कहा, मौला कायनात ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपको तन्हा छोड़कर चला जाता, ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता। ये मकाम नुज़ूल बताने जा रही हूँ आपको मैं इस आयत मुबारका का कि अली ने क्या जवाब कहा, या रसूल अल्लाह आपको तन्हा छोड़कर चला जाता, ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता। इधर अली की ज़बान से ये जुमला निकला, फिर अली का जुमला ना रहा, बारगाहे इलाही में मीज़ाने अदल में तोला गया तो फिर कुरान की आयत बन गया। जिब्राइल ये आयत लेकर आ गए, अतीउल्लाह व रसूला व इन तवल्लौ फ इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल काफिरीन। जुमला ना रहा, कुरान की आयत बन गई। की मूरत ही ना होती, दिल में अगर इब्लीस की मूरत ही ना होती, ज़हनों में कभी हकीकत सूरत ही ना होती। यूं ही सभी मुसलमान अगर प्यार करते अली से तो खुदा की कसम खुदा को दोज़ख बनाने की जरूरत ही नहीं।
अली को सबके बराबर ना समझा करो। ए तारीफ के मौरखों, जो कुरान की आयत के मुताबिक अमल करे उसे मुसलमान कहते हैं, उसे उम्मती कहते हैं, उसे सहाबी कहते हैं, उसे ताबई कहते हैं, उसे तबा ताबई कहते हैं, उसे मुफ्ती कहते हैं, उसे मौलवी कहते हैं, उसे कारी कहते हैं। लेकिन जिसके कौलो अमल के मुताबिक कुरान की आयत उतर आए, जिसके कौलो अमल का कुरान की आयत इंतजार करे, उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। नाराए हैदरी। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है, शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है, दहर के सारे लाइनों को अली जानता है। और कोई हासिद हो, मुनाफिक हो या गासिब, कोई एक इशारा है कि तीनों को अली जानता है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। रौनक होती है, मगर यहाँ मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, इसलिए कि मेरा मजमा इतना बेकार होकर सुनता है कि फ़ज़ाइल अली पढ़ने का लफ्ज़ दोबारा हो जाता है। और अली की फजीलतें सिर्फ हम बयान नहीं किया करते बशीर पर, अली की फजीलतें वो हैं जो गैर मुस्लिम बनाते हैं। यूरोप का बहुत मशहूर और काबिल मुफक्किर है एडवर्ड गिबॉन, बच्चे आपसे नेट पर चेक कर सकते हैं। उसने जब तारीख़ इस्लाम का मुताला किया और अली के फ़ज़ाइल को पढ़ा तो एक फैसला कुन जुमला लगा, देयर इज़ नथिंग इन इस्लाम बट अली। इस्लाम में कुछ भी नहीं है अगर अली को निकालें। और यही तो हम एडवर्ड गिबॉन के इसी जुमले की तो हम अपनी मजालिस में तशरीह किया करते हैं कि अगर तारीख़ इस्लाम की किताब के जिस भी वर्क से अली को अलहदा करके देख लीजिए वो वर्क अधूरा नजर आएगा। अगर काबे से अली को अलहदा कर दे तो काबा काबा नजर नहीं आता, बुत बदा नजर आता है। अगर बिस्तर रसूल से अली को अलहदा कर दे तो रसूल पर जान निसार करके अपने नफ्स को अल्लाह की मर्जी के एवज बेचने वाला कोई नजर नहीं आता। अगर ओहद से अली को अलहदा कर दे तो रसूल का कोई हामी और नासिर नजर नहीं आता। अगर खैबर से अली को अलहदा कर दे तो कोई शाह या फता नजर नहीं आता। अगर खंदक से अली को अलहदा कर दीजिए तो कुल्ले कुफ्र का दावा करने वाले तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन कुल्ले कुफ्र को कत्ल करने वाला कोई कुल्ले ईमान नजर नहीं आता। अगर मिंबरे रसूल से अली को अलहदा कर दीजिए तो कोई खतीबे मिंबरे सलोनी नजर नहीं आता। दूर पड़ी रसूल ने जब वो सारे रसूल के गिर्द जमा हो गए और रसूल ने सबको मुस्कुराकर देख लिया, इनसे वजह पूछ ली, तब वो जब आगे बढ़ कर वजूहात बयान कर रहे थे तब रसूल ने कहा, उनकी तरफ देखा, कहा अच्छा आप भी चले गए, अच्छा आप भी चले गए, अच्छा आप भी चले गए। सबसे रसूल ने पढ़कर पूछा। उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया? कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम तो जाना नहीं चाहते, हम तो बढ़कर लड़ना चाहते, हम तो हवा में तलवारें चला रहे हैं, हमारा जाने का कोई इरादा नहीं था, हमारा भागने का कोई इरादा नहीं था। ये तो खुदा भारत करे शैतान मरदूत को, इब्लीस को, कि जिसने आसमान पर ये आवाज़ लगा दी, माता मोहम्मदा, ये मोहम्मद मारे गए। अब जब इब्लीस ने ये आवाज़ लगाई तो हमने सोचा जब आप ही ना रहे, जब रसूल ही ना रहे तो मैदान में ठहरने का फ़ायदा क्या है। तो या रसूल अल्लाह, हम ये सुनने के बाद मैदान छोड़कर चले गए। रसूल ने फिर मौला अली की तरफ देखा, कहा या अली, क्या आपने भी इब्लीस की आवाज़ सुनी थी? मौला कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने भी सुनी थी, मैंने भी आवाज़ सुनी थी। तो रसूल ने कहा ए अली, जब इन्होंने आवाज़ सुनी तो ये मैदान से भाग गए, जब आपने भी इब्लीस की वही आवाज़ सुनी और आप यहाँ रुके रहे
क्या वजह है कि वो चले गए और आप ठहरे रहे? मौलाए कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने अपने ज़र्फ की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी फिक्र की बात है, अपने अपने फहम की बात है, अपने अपने इदराक की बात है, अपनी अपनी मारिफत की बात है, अपनी अपनी तरबियत की बात है, अपने अपने मिजाज की बात है। उन्होंने इब्लीस की आवाज़ सुनी तो वो छोड़कर चले गए। मेरी रगों में जो अबू तालिब का शरीफ खून था, जब मैंने वो आवाज़ सुनी, उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा कि जब आप ना रहे तो मैदान में रहने का फ़ायदा क्या है, और जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैंने ये सोचा कि जब आप ही ना रहे, जब रसूल ना रहे तो अली के जिंदा रहने का फ़ायदा क्या है। और मेरे मौला अली लापता, और मेरे मौला अली लापता, और मेरे मौला अली लापता। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलावत। तो जब रसूल ने अली से पूछा और अली ने ये जवाब दिया, तो असदाना ने इमाम अली रसूल खुदा से ये फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जो छोड़कर चले गए थे उन्होंने फ़कत आपका कलमा बताया और मैंने आपकी गवाही नहीं, मैंने रिसालत की गवाही दी। सिर्फ रसूल की गवाही नहीं, रिसालत की गवाही दी, मैंने नबूवत की गवाही दी है। तो अगर कलमा पढ़ने वाला छोड़कर चला जाए तो हर सिर्फ कलमा पढ़ने वाले पर आता है, लेकिन जो रिसालत की गवाही देने वाला है, जो नबूवत की गवाही देने वाला है, अगर वो छोड़कर चला जाए तो हर रिसालत पर आता है। अगर मैं छोड़कर चला जाता तो दुनिया कहती कि ये कैसा सच्चा रसूल है कि जिसकी गवाही देने वाला उसे छोड़कर चला गया। तो इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं हर मिंबर से ये ऐलान किया करूँ जो रसूल ने ऐलान किया था कि तहरीक नबूवत हम करेंगे, तायीद नबूवत अली करेंगे, तहरीक रिसालत हम करेंगे, तायीद रिसालत अली करेंगे। नबूवत हमारी होगी, इमामत अली की होगी, रिसालत हमारी होगी, विलायत अली की होगी, शरीयत हमारी होगी, तरीक़त अली की होगी, इताअत हमारी होगी, मवद्दत अली की होगी, शहर इल्म हम होंगे, इल्म का दर अली, विलायत इखलाक हम होंगे, ज़मीन का लंगर अली होंगे, कायम मकाम हम होंगे, रवा रवा अली होंगे, और जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ वहाँ अली होंगे। सबसे अव्वल मेरी ज़ौजा उसका हमसर में, दोष नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था। छू सकता था हाथ बढ़ाकर अर्श का तारा में, पर क्यों छूता हाथ बढ़ाकर अर्श का तारा में, जब उसको बुलवा लेता हूँ अपने दर पे में। नारा हैदरी, और आप सब याद करने वालों की नस्लों में इस फर्शदा को हमेशा पाया हुआ है। तो अली ने रसूल से कहा कि मैं तो आपकी रिसालत की गवाही देने वाला हूँ, और जब तक आपकी रिसालत बाकी रहेगी
हमारा अकीदा है ना कि रसूल थे नहीं, रसूल हैं। हम गवाही देते हैं ना नमाजों में, मोहम्मद रसूल अल्लाह के रसूल, अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो रिसालत कब तक रहेगी? जब तक दुनिया रहेगी, जब तक क़यामत नहीं आएगी, रसूल की रिसालत रहेगी। तो अली क्या कह रहे हैं कि जब तक आपकी रिसालत रहेगी मेरी तस्दीक रहेगी, और जब मैं नहीं रहूँगा, अली रसूल से कह रहे हैं कि जब अली नहीं रहेगा तो अली का हसन आपकी रिसालत की गवाही के लिए आएगा। जब हसन नहीं रहेगा तो हुसैन आपकी नबूवत को बचाने के लिए, आपकी रिसालत की गवाही देने के लिए आएगा। और हुसैन अकेला नहीं आएगा, हुसैन अपने साथ पूरे कुतबे को लेकर आएगा। सिर्फ हुसैन अकेला आपकी रिसालत को बचाने वाला नहीं होगा, हुसैन का 18 साल का कड़िया जवान भी आपकी रिसालत को बचाने आएगा। हुसैन का 6 महीने का अली असगर भी आपकी रिसालत को बचाने के लिए आएगा। और हुसैन की 4 साल की वो सकीना की जिसे हुसैन ने नमाज शब की दुआओं में मांगा था, वो सकीना भी अपने रुखसारों पर तमाचे खा लेगी मगर आपकी रिसालत पर आँच नहीं आने देगी। असदरान इमाम, आप फर्श अज़ा पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आती, मैं इस मिंबर पर अपनी मर्ज़ी से नौकरी नहीं करती। मेरे वक्त का इमाम सबकी ड्यूटी लगाता है, पढ़ने वालों की भी और अज़ादारों की भी, किसने किस फर्श अज़ा पर पहुँचना है, किसने कहाँ फर्श अज़ा पर कुर्सा देना है। आपका नाम लेकर इमाम वक्त बुलाते हैं तो आप फर्श अज़ा पर आते हैं। असदारान इमाम, जब अय्याम अज़ा शुरू होने से पहले इमाम वक्त फहरिस्त तैयार करते हैं, किस अज़ावात में पोस्ते के लिए किस फर्श अज़ा पर पहुँचना है, किस जाकिर ने कहाँ पढ़ना है, किस जाकिर अव्वल ने कहाँ मर्ज़िया पढ़ना है, सबकी ड्यूटी मेरे वक्त का इमाम लगाता है। तब हम इस फर्श अज़ा पर आते हैं। ये फर्श अज़ा बाकी ही इसलिए है कि हमारा वारिस इसका है। तो ज़ाहिर इमाम फर्श अज़ा पर इमाम वक्त बुलाते हैं और जो करबला जाते हैं उनको इस्म अब्बास दिया करते हैं, उनकी फहरिस्त अब्बास बनाया कि जिसका नाम अब्बास फहरिस्त में लिख देते हैं उसके पास असबाब हो या ना हो वो करबला मौला पहुँचता है। सारा इमाम, बस दुआ किया कीजिए, हम सब अपनी नौकरी करने आते हैं, दुआ किया कीजिए फर्श अज़ा पर आकर कि हमसे कोई ऐसा अमल सरजद ना हो जाए कि इमाम उस फहरिस्त में से हमारा नाम निकाल दे। ये फर्श अज़ा जो मंसूब है शहज़ादी सकीना से, साहिब रज़ा हर साल ये फर्श बिछाते हैं उस दुआ के नतीजे में कि जो उन्होंने इस दर से बेटी मांगी और परवरदिगार ने सकीना के सदक़े में बेटी अता कर दी। खुदा हर बेटी का नसीब अच्छा करे। असदारान इमाम, हुसैन ने भी नमाज शब की दुआओं में सकीना को मांगा था। आज उस शहीदा का मातम है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि जैसे आपने फ़ज़ाइल का हक़ अदा किया है, आप कोशिश कीजिएगा कि मार्फत के साथ गिरिया करें और कुछ हक़ अदा करने की कोशिश करें। इसलिए कि जब आपके गिरिए की आवाज़ें बुलंद होना शुरू होती हैं ना, तो उसी वक्त आपका छठा इमाम हाथों को बारगाह इलाही में उठा देता है आपके हक़ में दुआ के लिए, और ये कहता है कि बारे रहा इन आवाज़ों पर अपना रहम फरमा। और ये हक़ है गिरिए का कि हम इस तरह रोएं जैसे एक बूढ़ी माँ जवान बेटे को रोती है। जब हम फर्श अज़ा पर आए ना तो हमारे गिरिए का आलम ऐसा ही होना चाहिए अगर मार्फत के साथ किया हो। तो ज़ालिमा, आज उस शहीदा का मातम है, आज उस यतीमा का पुरस्कार देना है कि जो मन कर रही पैर से रिहा है। करबला की वाहिद शहीदा है सकीना कि जिसे मरने के बाद भी पैर से रिहाई नहीं मिली।
ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے امام ہفتوں سے یہ کہا مولا امام حسین کاظم آج شب جنازہ ہے آپ کے بھی فرزند کی مولا آپ کی خدمت میں بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں مولا آپ 14 سال قید میں رہے 14 سال کی قید گزاری ہے ہمارے ساتھ میں امام نے مولا مگر 14 سال قید گزارنے کے بعد آپ کو رہائی مل گئی آپ شہید ہونے کے بعد زندان میں قید نہیں رہے لیکن یہ واحد یتیمہ یہ واحد شہیدہ کہ جس کے جنازے پر رونے والے بھی قیدی تھے اور جس کا جنازہ اٹھانے والے بھی قیدی تھے میرا مولا سید سجاد سر سے پیر تک زنجیریں ہیں اور ہاتھ میں 4 سالہ بہن کا جنازہ ذرا تصور کرو کتنا بھاری جنازہ ہو 4 سال کی بچی کو کہ سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہاتھوں پر سکینہ کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے عزیزانوں یہ اس قیدی کا جنازہ ہے کہ جو پرندوں کو جب اڑتے دیکھتی تھی سر آسمان تو سید سجاد سے بس یہی سوال کیا کرتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں اور میرا مولا رو کر کہتا تھا سکینہ اب شام ہو گئی ہے نا اب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اس وقت میری شہزادی حسرت سے کہتی تھی بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں اور میری اس شہزادی کو گھر جانا نصیب نہ ہوا یہ وہ یتیمہ ہے وہ یتیمہ ہے کہ جس نے یتیمی کا لفظ اس وقت سنا تھا جب مسلم مارے گئے تھے اور اس وقت جناب سکینہ نے اپنے بابا کو مسلم کی بیٹی عاتقہ کے سر پر جب ہاتھ پھیرتے دیکھا تھا نا تو اس وقت آ کر حسین سے پوچھا تھا بابا آپ عاتقہ کو آج اس طرح پیار کیوں کر رہے ہیں جانتی حسین نے کیا جواب دیا تھا حسین نے کہا تھا سکینہ عاتقہ کے بابا مارے گئے عاتقہ یتیم ہو گئی ہے سکینہ نے دیکھا تھا کہ حسین اپنے ہاتھوں سے عاتقہ کی کانوں میں نئے گوشوارے پہنا رہے ہیں سکینہ بڑی حیران ہوئی تھی بابا نئے گوشوارے کہا ہاں سکینہ اب اس کا بابا نہیں رہا نا اب میں اس کا باپ ہوں اور اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹی ابھی حسین زندہ ہے جب کسی چیز کی ضرورت پڑے آ کر حسین سے مانگ لینا زدارو سکینہ نے تو یہی سنا تھا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو اس کو گلے لگایا جاتا ہے اسے پیار کیا جاتا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اسے کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں مگر سکینہ کی یتیمی کا استقبال کیسے ہو رہا ہے ارے جب شام غریبہ آئی ارے جب اشقیاء خیموں میں آگ لگانے کے لیے آ رہے ہیں سکینہ کو بابا کی بات یاد آ گئی سکینہ کو لگا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں نا میں یتیم ہو گئی ہوں اس لیے اب میرے کانوں میں گوشوارے پہنائے جائیں گے اب مجھے آ کر گلے لگایا جائے گا اب میرے سر پر ہاتھ رکھا جائے گا عزادارو سکینہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھتی تھی انا یتیم میں یتیم ہوں ارے سکینہ کو لگتا تھا اب گلے لگا لیں گے مگر سکینہ کو کسی نے گلے نہ لگایا عزادارو کسی نے سر پر ہاتھ نہیں رکھا ارے گوشوارے پہنانا دور کی بات ہے ارے کانوں سے گوشوارے اس طرح چھین کر اتارے گئے کہ کانوں سے لہو بہتا رہا ارے سکینہ کبھی نوکے نیزہ پر بابا کے سر کو دیکھتی تھی ارے کبھی خولی کے گھوڑے کی گردن میں بندھے عباس کے سر کو دیکھتی تھی اور رو کر کہتی تھی چچا عباس بچا لیجیے ارے سکینہ سے تماچے نہیں کھائے جاتے ارے کبھی ماں کی جانب دیکھتی تھی مگر ماں کیا کرتی ماں کے ہاتھ کسے پشت بندھے ہوئے تھے ارے ماں دلاسا نہیں دے سکتی تھی ماں گلے سے نہیں لگا سکتی تھی
عزاداران امام، سکینہ کی مصیبت شام غریبہ میں ختم نہیں ہوتی، سکینہ کی مصیبت شام غریبہ سے شروع ہوتی ہے اور زندان شام میں ختم ہوتی ہے، جہاں بچی ایک شمع کے لیے ترستی تھی عزاداران امام، جہاں سکینہ یہ کہتی رہتی تھی کہ کوئی ایک شمع بھیج دے۔ اندھیرے زندان سے سکینہ کو بہت ڈر لگا کرتا تھا۔ عزاداروں، زندان میں شمع تو نہیں آئی، یزید کا قاصد آیا اور سید سجاد سے کہا یہ بچی بہت روتی ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے؟ اس کے رونے کی وجہ سے شام کی عورتیں ہمارے محل تک آ جاتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی نیندیں اجڑ گئی۔ سید سجاد سے کہا کہ پوچھو یہ بچی کیا چاہتی ہے؟ سید سجاد نے سر کو جھکا لیا اور رو کر کہا بابا کا سر چاہتی ہے۔ خدا کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران امام، جب سید سجاد نے کہا بابا کا سر چاہتی ہے، یزید نے حکم دیا زندان شام میں حسین کا سر بھیج دیا جائے۔ بچیوں بھی میرے سامنے بیٹھی ہے، بچیوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ عزاداران امام، بچیاں باپ سے بہت قریب ہوتی ہیں نا، سر شام انتظار کرتی ہیں بابا کام سے کب آئیں گے، اور یہ سوچتی رہتی ہے نا کہ جب بابا آئیں گے تو یہ کہوں گی، بابا آئیں گے تو ماں کی شکایت کروں گی، بہن بھائیوں کی شکایت کروں گی، ماں نے بڑا بات پہ ڈانٹا تھا، بہن بھائی نے جھگڑا کیا تھا، یہ چھوٹی بچیوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ مگر ذرا تصور کرو، ذرا تصور کرو اس یتیمہ کا باپ نہیں آ رہا، باپ کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے، اندھیرا زندان ہے، 4 سال کی یتیمہ ہے، اور جب کشت میں رکھا ہوا حسین کا سر آیا، سکینہ نے کپڑا ہٹایا، بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا۔ ارے تصور کرو 4 سال کی بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ارے منہ پر منہ رکھ دیا، لبوں پر لب رکھ دیے، مجھے نہیں پتا، روایت خاموش ہے، سکینہ نے بابا سے کیا کیا کہا ہوگا، سکینہ نے کون سا زخم دکھایا ہوگا۔ عزاداران امام، مگر زینب کہتی ہے سکینہ جب بولتے بولتے خاموش ہو گئی، منہ پر منہ رکھ دیا، سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب کو لگا سکینہ کو نیند آ رہی ہے، سکینہ روتے روتے سو گئی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے چاہا بچی کو آغوش میں لے لے۔ عزاداران امام، اب جو 4 سال کی بچی کو اٹھانا، گردن ایسی گردن ایک طرف ڈالے گئی۔ ارے زینب، سید سجاد کو آواز دی، اے بیٹا سید سجاد، دیکھو سکینہ کو کیا ہو گیا۔ ارے میرے مولا کی آواز آئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تمہیں اللہ، سکینہ گزر گئی۔ عزاداروں، ارے وہ بچی جو ایک شمع کے لیے ترستی تھی، جب وہ مر گئی، ارے زندان شام میں شمع آ گئی، اب سکینہ کا جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ ارے شمع بھی آ گئی اور 10 سالہ بھی آ گئی۔